بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چھوئی موئی نظام ہے، یہ اس شخص کو نشان عبرت بنانے پر تل گیا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمیں للکارنے کی، ہمارے بارے میں کچھ بولنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ انصاف کے جن کا شاید نام ساجد بتایا جا رہا ہے، ان کے بیٹے عدالت پہنچ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او فلاں فلاں ایس ایچ او نے ان کو اب سے بجا میں رکھا ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں ان کو غائب کر دیا گیا ہے، ورنہ ایک ایس ایچ او کسی کو کہاں رکھے گا اور کیوں رکھے گا، اور وہ بھی ایک اس چیز پر کہ جی تھوڑا سا غصہ نکال دیا تھا۔ یہ نظام اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ عوام کو جوتے بھی مارے گا اور ان کو چیخنے بھی نہیں دے گا۔ لیکن میرے پاکستانیوں، یہی کمپنی کی شکست ہے۔ جب آپ کو اپنی عزت ڈنڈے کے بل پہ کروانی پڑ جائے اور عوام آپ سے نفرت کی اس انتہا پر پہنچ جائے کہ ڈنڈے کے باوجود بھی آپ کو عزت دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو اگر یہ شکست نہیں ہے میرے پاکستانیوں، تو پھر شکست کیا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے، کہا گیا بدترین شخص وہ ہے جس کے خوف کی وجہ سے یا اس کے شر کی وجہ سے، آئی تھنک شر کا لفظ ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ یہاں پہ ہماری کمپنی بالکل اس پہ پوری اترتی ہے۔ ان کے شر کی وجہ سے اگر کوئی لوگ ان کے بارے میں اچھی بات کر دیتے ہیں، ورنہ سب کے جذبات وہی ہیں جو اس شخص نے بیان کیے تھے۔ اب اس شخص کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ دوبارہ کوئی نہ کہے۔ اس نظام کو خوف یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا یہ وائرل ہو گیا، وہ تو ہو گیا ہے۔ پاکستان کا بچہ اب اس شخص کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس شخص نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ لیکن نظام جو اس ملک میں کھڑا ہے، اس کو خوف یہ ہے کہ آج ایک ہے، پھر 2 ہوں گے، پھر 4 ہوں گے، پھر 8 ہوں گے، پھر 16 ہوں گے، پھر 32 ہوں گے، پھر 64 ہوں گے، اور یہ بڑھتی چلی جائے گی تعداد۔ اس لیے اس کو یہاں پہ روکنا ہے۔ اس کو نشان عبرت بنا دیں گے تو باقی سب کو بھی کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ اس کو ڈھیل دی تو لوگ مزید کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کمپنی اس کو بغاوت سمجھتی ہے کہ ہمارے سیٹ اصولوں سے تھوڑا بہت بھی کوئی ڈیویٹ کرتا ہے تو وہ ہمارا باغی ہو گیا ہے، ریاست کا باغی ہو گیا، کیونکہ کمپنی خود کو ریاست کہتی ہے۔ اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ 9 مئی سے کمپنی کو کیا تکلیف ہے، آپ نے ان کو کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے۔ 9 مئی کو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انف از انف۔ وہ ادارہ جو ہمارے وزرائے اعظموں کو پھانسیاں دیتا ہے، جیلوں میں ڈالتا ہے، فاطمہ جناح پہ مبینہ طور پہ تشدد کرتا ہے، قائد اعظم کی مبینہ طور پہ ایمبولینس کو جان بوجھ کے اسپتال نہیں پہنچنے دیتا، ان کو پہلے تو جنگل بیابان میں چھوڑ دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی اسپتال نہیں، کوئی سہولت نہیں، وہاں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو عوام نے کہا انف از انف، اور وہ پرامن احتجاج کے لیے کینٹ کے علاقوں کی طرف چل پڑے۔ اس کا فائدہ اٹھایا کمپنی سرکار نے اور اس کو بغاوت میں بدل دیا۔ نیریٹو سارا یہ کھڑا ہو گیا تھی کہ یہ کوئی بغاوت تھی، یہ کوئی فوج پہ حملہ تھا، جبکہ لوگوں نے صرف احتجاج کیا تھا کہ اب تمہیں نہیں کرنے دیں گے یہ سب کچھ۔ لیکن اس کے بعد کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی ڈر گئی ہے، خوف کا شکار ہو گئی ہے کہ اتنے لوگ اگر عمران خان جیل میں ہے اور لیڈر لیس باہر نکل آئے ہیں، امیجن اگر ہم نے ان کو نشان عبرت نہ بنایا تو کیا ہوگا۔ میرا آپ سے سمپل سوال ہے، آپ کمپنی کی جگہ ہوتے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ کریک ڈاؤن نہ کرتے، آپ کہتے جی کہ میرٹ پہ عمران خان کو 2 مہینے بعد آپ اسی طرح گرفتار کر لیتے کسی کیس میں سزا دلوا کے، اور اس کے بعد کوئی سختی نہ ہوتی، تو کیا دوبارہ لوگوں نے نہیں آنا تھا؟ کوئی سختی نہ ہوتی، کوئی مار دھاڑ نہ ہوتی، پارٹی نہ توڑی جاتی، کچھ بھی نہ کیا جاتا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا دوبارہ لوگ نہ نکلتے، زیادہ نکلتے؟ لوگوں کو ہوتا ہے یار کہ ایک بار نکلیں، کچھ ہم نے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں، عمران خان کو رہا کروایا ہے، اب بھی کروائیں گے، ڈبل تعداد نکلتی۔ پھر کچھ نہ یہ کرتے، پھر اس کی ڈبل ہوتی اور ان کا قبضہ ختم ہو جاتا۔ اس قبضے کو بچانے کے لیے یہ سارا نیریٹو کھڑا کیا گیا کمپنی کی طرف سے کہ 9 مئی کو بغاوت ہو گئی، 9 مئی کو ہمارا اقتدار ہم سے چھیننے کی کوشش تھی، فوج کے اندر بغاوت کی کوشش تھی، حکومت کو گرانے کی کوشش تھی، اور یہ ساری باتیں کی گئیں۔ لیکن مقصد صرف ایک ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سختی نہ کی یا تھوڑی سی بھی ڈھیل چھوڑ دی، ابھی بھی ان کو ڈر ہے
कि अगर हमने थोड़ी सी ढील छोड़ दी ये दोबारा खड़े हो जाएंगे। अवाम को इतना मारा है। देखिए, सख्तियां वो चीज़ है कि जब वक्त गुजर जाता है ना, इंसान भूल जाता है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि सख्ती जब आती है तो वो कहता है यार इससे बुरा वक्त है ही नहीं मेरे पास। लेकिन जैसे वो सख्ती टलती है इंसान सब भूल जाता है और आगे की तरफ देखना शुरू कर देता है। इंसान का नेचर ऐसे, इंसान को बनाया ऐसे गया है। वो सख्तियों पे वालो नहीं करता रहता, वो हमेशा भूल के आगे बढ़ता है। तो ये भूलने नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि जुल्म जबर जारी रखें, और इसलिए इंसाफ को अब निशान इबरत बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई निज़ाम और उनके लाडलों को ललकारने की। जुर्रत कैसे की तुमने, तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम ब्लडी सिविलियन हो, तुम्हें हम बताएंगे कि किस तरह इस मुल्क में रहना है अगर तुम रहना चाहते हो, वरना तुम्हें छित्तर भी पड़ेंगे और तुम्हें चीखने भी नहीं दिया जाएगा। जो मैं कहने लगा हूं इनका फायदा है, और अगर ये मानेंगे तो इससे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा कि लोगों को वेंट करने दें। दो चार किसी ने सलवातें सुना दी, सुनाने दें, इससे लोगों का कथारसिस हो जाता है, आपका फायदा है। लेकिन मेरे मुल्क का भी फायदा है कि जो जुल्म और जबर का आपने निज़ाम कायम कर दिया है, गुलामी का निज़ाम, लोगों को कुछ तो लगे कि यार हम इतने भी गुलाम नहीं है, कुछ ना कुछ बोलने की आज़ादी है। माशरे ऐसे ही फलते फूलते हैं, वरना सिर्फ तबाही तबाही आती है। इस शख्स ने जब ये बोला था, होना ये चाहिए था कि बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता। इस शख्स को घर जाके बताया जाता कि हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यही शख्स अपनी रजामंदी से कहता है यार कि मेरे तो ये प्रॉब्लम ये हल कर गए हैं एक दिन में, तो ये तो बड़ी अच्छी हुकूमत है, ये तो बड़ी अच्छी फौज है। इस तरह लोगों के दिल जीते जाते हैं। ऐसे नहीं कि मार मार के लोगों को डरा के हुक्मरानी कर लोगे तुम लोग। कुछ लोग बहुत मायूस नजर आ रहे हैं कि जैसे कोई रास्ता नहीं है, कंपनी जीत रही है। बहुत सारी मुझे मायूसी नजर आ रही है। पीटीआई की जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं वो बिल्कुल अब सरेआम आ चुकी हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों की एक ही वजह, और ये हमेशा रही है, कि इमरान खान डिक्टेटर नहीं है और लोगों को पता है कि ये फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है। तो हर बंदा अपने तय कोशिशें करता है कि मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊं, मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊं, मेरा रास्ता बन जाइए। ये कोशिशें जारी रहती हैं। मेन वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, भाई हर बंदा अपने डिसिप्लिन के अंदर रहेगा। डिसिप्लिन यहां कोई फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान इस पार्टी को आजादी देकर इवेंचुअली डिसिप्लिन भी सिखा देंगे। टाइम लग रहा है, ये माशरा बहुत बिगड़ा हुआ है, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमेशा से लड़ाइयां रही हैं, लेकिन इस वक्त जो लड़ाइयां हैं ना, कुछ तो करवाई जा रही हैं कंपनी की तरफ से, वो डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो कंपनी के जो लोग पीटीआई के अंदर अब भी मौजूद हैं वो लड़ाइयां डलवा और करवा रहे हैं। और कुछ लड़ाइयां हैं बुज़दिली की वजह से, कुछ लड़ाइयां हैं कंप्रोमाइज होने की वजह से, और कुछ लड़ाइयां हैं कि जो लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं, प्लेन एंड सिंपल। मैं हमेशा ये कहता हूं कि तनकीद जो सोशल मीडिया पे होती है उसे बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि फौज का बुनियादी बयानिया ये है कि सोशल मीडिया पे शुतर बेमहार तनकीद है। आप लोगों ने ये साबित करना है कि आप वो जमात है, और ये मैं पीटीआई को पैगाम दे रहा हूं बतौर जमात और बतौर आपके सारे टॉप लीडरशिप। मैं देख रहा हूं बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं आप लोग, और ये बड़ी लोग बातें हो रही हैं, बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा जुल्म हो गया, सोशल मीडिया ने कर दिया। यही तो फौज कहती है। मेरा इस्तदलाल ये है कि ये सोशल मीडिया आप पे वॉच डॉग का काम कर रहा है, ये फौज पे भी वॉच डॉग का काम कर रहा है, ये अदलिया पे भी, और ये तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों पर भी। ये वॉच डॉग ही इस मुल्क में जमहूरियत लेकर आएगा। इसको बर्दाश्त करना सीखें। हमें लोग गालियां देते हैं यार रोजाना की बुनियाद पे, मैंने बर्दाश्त करना सीखा है, अपने अंदर ये सब्र डेवलप किया है। ये करना पड़ता है आपको, और ये सबको करना पड़ेगा। कोई किसी को गद्दार बना नहीं सकता। आपके अमल से पता चलता है कि आप गद्दार हैं या नहीं, अमल बताएगा आपका। सेनेट में किसको टिकट दिया जाएगा और जीतेगा कौन, ये आपका अमल बताएगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। इमरान खान ने अगर किसी खुर्रम निशान को या मुराद सईद का जिक्र किया, और अगर आप उनको निकाल देते हैं और कहते हैं जी कि कंपनी नहीं मान रही, और वो कहते हैं जी कि इनको ना बनाओ तो आगे हालात अच्छे कर देंगे, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आप किधर खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं। सिर्फ पैसे की वजह से लोगों को अगर टिकट दिए जाएंगे तो ये भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, ठीक है ना। पीटीआई तो पैसे के खिलाफ सियासत कर रही है। तो अगर पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जो पैसे की सियासत करना चाहते हैं, अगर कुछ लोग हैं, तो वो भी बेनकाब हो जाएंगे। वक्त सबको बेनकाब कर देता है, कोई छुपा नहीं रहेगा, कोई बचा नहीं रहेगा,
सब सामने आ जाएगा आवाम के। तो मैं आपको फिर एंड में बताऊं कि इस टाइम पूरा निज़ाम जुल्म और जबर पे खड़ा है। पूरा निज़ाम एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है, और ये प्रेशर कुकर के ऊपर बैठ के आवाज़ों को भी रोक रहे हैं। जो हल्की सी आवाज़ आती है ना प्रेशर कुकर से, अगर आप उसको भी रोक दें, बंद कर दें, ढक्कन डाल दें, तो इवेंचुअली प्रेशर कुकर फट जाता है। इस टाइम कंपनी सरकार उस प्रेशर कुकर के ऊपर बैठी हुई है। चचा जैसे लोग जो हैं ये कोशिश करते हैं प्रेशर रिलीज करने की, आवाम की जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, तो इनको भी बंद करा दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है, यानी मजीद दबाव बढ़ा दिया जाता है प्रेशर कुकर के ऊपर। साइंस ये कहती है कि अगर आग फुल जल रही है और प्रेशर कुकर से एग्जिट के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, बिल्कुल भी कोई स्टीम ना निकल रही हो, तो धमाका होगा। साइंस यही कहती है, और मैं समझता हूं कि ये लॉजिकल बात है कि इवेंचुअली ये धमाका होना है। कंपनी का सियासी दौर खत्म होगा, इक़्तिदार का दौर खत्म होगा, और अवाम के इक़्तिदार का सूरज तलू होगा। कंपनी जिस जगह बैठी हुई है वो सिर्फ तबाही का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता नहीं है। अभी कंपनी को आलमी ताकतों की सपोर्ट है, क्योंकि आलमी ताकतों की कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं, लेकिन ये ज़रूरतें सदा एक जैसी नहीं रहती। आलमी ताकतों को रूस के खिलाफ भी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो ज़रूरत ख़त्म हुई, कंपनी को लात मार के परे फेंक दिया गया था। प्रेसलर सैंक्शंस लग गई थी हमारे ऊपर। कंपनी को जब जब ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल मुशर्रफ के दौर में ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद दोबारा जब ख़त्म हुआ तो हमारे ऊपर फिर सैंक्शंस लगी। फिर जब दोबारा हम वॉर ऑन टेरर में शामिल हुए, जमहूरी सो कॉल्ड दौर में, जो बारियों वाला दौर था 2008 के बाद, उसके बाद जब फिर 2016 आया, 17 आया, फिर हम पर पाबंदियां लग गई, आपको कोई फंड नहीं मिलेगा, फलां नहीं होगा, आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो हमेशा जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है वो आप पे पाबंदियां लगाते हैं या हाथ खींच लेते हैं। ये भी होता हुआ आपको नजर आएगा। जो कुछ इन्होंने डिलीवर करना है, ये करने की औकात नहीं है इनकी। जब डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी देर आलमी सपोर्ट रहेगी। तो आलमी हालात इनके लिए साजगार हैं, इसलिए ये चल रहे हैं। जैसे ही वहाँ तब्दीली होगी, पाकिस्तान में भी इनका सूरज गरूब हो जाएगा। लोकल लेवल पे इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कुछ भी इनके हाथ में नहीं है और कुछ भी कंट्रोल नहीं है। सिर्फ केओस क्रिएट करके ये चल रहे हैं डे टू डे। पीटीआई क्योंकि मुनज़्ज़म नहीं हो पा रही, तो मैं आपको एक और पैगाम देना चाहता हूँ। कंपनी आपको पता है कि क्यों अब तक चल रही है, 78 साल से इक़्तिदार कैसे इंजॉय कर गई है? क्योंकि मुनज़्ज़म सियासी जमात है। उनका जो लीडर कह देता है ना कुछ, उनका जो चीफ है वो गलत हो सकता है, वो गैर कानूनी हो सकता है, वो उस पर अमल करते हैं। उसमें गलतियां हो सकती, उस फैसले से डायरेक्ट हो सकता है नुकसान हो रहा हो, फिर भी अमल किया जाता है। दैट्स वाई वो इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। पीटीआई ने अगर इमरान खान की बातों को इसी तरह, गलत हो सही हो जैसे भी हो, आपको लगता है ना आपकी दानिश में यार कि वो बाहर नहीं है, गलत हो, आप मान लेंगे ना, आप देख लेंगे कि आप मुनज़्ज़म भी हो जाएंगे और बेहतरी भी आ जाएगी। तो इमरान खान की हर बात ऐसी माने जैसे कंपनी में उनके लीडर की बात मानी जाती है। आप मुकाबला एक मुनज़्ज़म जमात से कर रहे हैं जो इस मुल्क पे काबिज है। कब्जा छुड़ाना है तो आपको भी मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। केओस में मुनज़्ज़म लोगों से लड़ना नामुमकिन हो जाता है।